اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد۔ دیکھیے آج دن کیا ہے؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہیں آپ؟ دیکھیے لاسٹ جو جلسہ تھا اس کا کلاس تھی اس کی نحو مقدماتی کی، کیونکہ نحو مقدماتی ہے نا منگل ہے، تو اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مضارع مجزوم کے بارے میں بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ مضارع مجزوم کے بارے میں بتا دیا تھا کہ مضارع مجزوم کسے کہتے ہیں؟ مضارع مجزوم یعنی جس کے اوپر وہ مضارع جس کے اوپر عوامل جزم میں سے کوئی عامل آ جائے، جزم دینے والے عامل میں سے کوئی مضارع کے شروع میں آ جائے تو مضارع مجزوم ہو جاتا ہے۔ مجزوم ہو جاتا ہے کیا مطلب؟ مجزوم ہو جاتا ہے یعنی اس کے عامل میں جزم آ جاتا ہے۔ جزم کے معنی کیا بتائے تھے لغت میں؟ کاٹنا۔ اصطلاح میں جزم کے کیا معنی ہے؟ مضارع سے علامت رفع کو ختم کر دینا۔ علامت رفع ختم ہو گئی یعنی جزم، تو علامت جزم کیا تھی فعل مضارع میں؟ علامت جزم فعل مضارع میں، علامت جزم فعل مضارع میں کیا تھی؟ سکون۔ بتایا تھا ہم نے علامت جزم یا تو سکون ہوگی اگر فعل ناقص نہ ہو، ناقص نہ ہو یعنی لام فعل کی جگہ حرف علت نہ ہو۔ لام ین غنچہ فاطمہ سمجھ رہی ہے؟ یاد ہے نا؟ ہاں، اور حذف یا حذف حرف علت کب؟ اگر فعل ناقص ہو۔ مائک بند کر لیں۔ فعل ناقص ہو اگر فعل، یہ دیکھیے علامت جزم مضارع میں سکون ہے اگر فعل ناقص نہ ہو، جیسے لم ینصر۔ حذف حرف یا پھر حذف حرف علت ہے اگر فعل ناقص ہو، جیسے لم یدعو، یدعو تھا یدعو، واو گر گیا، ٹھیک ہے؟ اب آئیے جی اسما، تو ہم نے لاسٹ جلسے میں مضارع مجزوم کے بارے میں باقاعدہ بتایا تھا مضارع مجزوم یعنی وہ مضارع جس کے شروع میں اگر عامل جزم آ جائے، جزم دینے والا کوئی عامل آ جائے تو مضارع مجزوم ہو جاتا ہے۔ مجزوم ہو جاتا ہے تو علامت جزم اس کے اندر فعل مضارع میں کیا ہوگی؟ یا تو سکون ہوگی اگر فعل ناقص نہ ہو یعنی لام فعل کی جگہ حرف علت نہ ہو تو علامت جزم سکون، اور اگر لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو تو حذف حرف علت علامت جزم ہے۔ اور 7 صیغ، یہ کتنے صیغوں میں ہے؟ بتایا تھا 5 صیغوں میں۔ کون کون سے؟ 1 4 7 13 14 واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، دیکھیں 3 تو واحد کے صیغے ہیں، 4 واحد کے ہیں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد مؤنث متکلم، 4 تو واحد کے ہیں، ٹھیک ہے؟ بس ایک واحد غائب ہے، ایک واحد نہیں ہے اس میں۔ کون سا واحد نہیں ہے؟ واحد مؤنث حاضر نہیں ہے، باقی سب واحد ہیں۔ واحد مذکر غائب بھی ہے، واحد مؤنث غائب بھی ہے، واحد مذکر حاضر ہے لیکن واحد مؤنث حاضر نہیں ہے، باقی واحد متکلم جمع سے۔ ان 5 صیغوں میں انہیں کیا کہتے ہیں؟ 1 4 7 13 14 واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم جمع متکلم۔ ان 5 صیغوں میں علامت جزم سکون ہوگی اگر فعل ناقص نہ ہو، لم ینصر یعنی ناقص نہ ہو یعنی لام الفعل کی جگہ حرف علت نہ ہو۔ اور انہی 5 صیغوں میں علامت جزم حذف حرف علت، حرف علت حذف ہو جائے گا اگر لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو تو۔ اور کیا ہے علامت؟ اور حذف نون اعرابی، حذف نون اعرابی، حذف نون اعرابی کہاں پر؟ افعال خمسہ میں۔ کتنے ہیں وہ؟
7 جگہ ہے وہ. افعال خمسہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ تسنیہ میں 3 ایک سے ہیں، 4 میں سے 3 ایک سے ہیں. یہاں پر حذف نون اعرابی چاہے فعل ناقص ہو چاہے فعل ناقص نہ ہو تب بھی نون اعرابی دونوں جگہ حذف ہونا ہے. سمجھ گئے غنچہ فاطمہ اسما؟ جی یہ ہم اس دن باقاعدہ طریقے سے پڑھ چکے تھے. آج جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ جیسے میں نے بتایا تھا پچھلے جلسے میں، جیسے بتایا تھا کہ عوامل نصب دینے والے جو عامل ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. کچھ وہ ہیں جو بالذات خود نصب دیتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو عن مقدرہ کے. ایسے ہی تھا کہ ناصب 2 طرح کے تھے، جازم بھی 2 طرح کے ہیں، لیکن 2 طرح کے ہیں. کون سے 2 طرح کے بتائیں گے؟ عوامل یعنی جزم دینے والے عامل. عوامل جزم یعنی جزم دینے والے عوامل 2 طرح کے ہیں. کون کون سے؟ پہلے ایک فعل کو جزم دیتے ہیں. ایک فعل کو جزم دیتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ فاطمہ کون سے ہیں جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں؟ لام، لما، لام امر اور لائن. لم، لما، لام امر، لائن. دیکھیے لم یضرب، لم یضرب ایک ہی کو جزم دیا ہے. لما یضرب، لام امر، امر غائب یاد ہے امر پہ لام، لے یضرب. دیکھیے جزم دیا نہیں دیا ایک کو. اور لائے نہیں، جیسے کل بھی مثال دی تھی صرف مقدمات کی میں، لا یضرب. دیکھیے ایک ہوتا ہے لا یضرب، ایک ہوتا ہے لا یضرب. کیا فرق ہے؟ لا یضرب لا ناہیہ ہے، لا یضرب لا نافیہ ہے. تو کچھ عوامل وہ ہیں کہ جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، کچھ عوامل وہ ہیں کہ جو 2 فعل کو جزم دیتے ہیں. 2 فعل کو جزم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. انہیں کیا کہا جاتا ہے جو 2 فعل کو جزم دیتے ہیں؟ ادات شرط. ادات شرط. ادات شرط جیسے جب ضربہ سے مثال دی جا رہی ہے تو اسی سے دیجیے. ان تضریب اضریب، ان تضریب اضریب، ان تضریب اضریب. دیکھیے 2 کو جزم دیا نہیں دیا؟ تضریب اضریب. اب اس کے بارے میں بتائیں گے، فی الحال اتنا ہی لکھیے. ان تضریب ان تضریب اضریب لکھ لیا آپ نے. غنچہ فاطمہ اسما سکینہ کلثوم فاطمہ، کلثوم فاطمہ، فہیم صاحب جی لکھیے. کلثوم فاطمہ لکھ لیا. جی. جی اب یہ یہ جو بتایا نا جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، ایک فعل کو جو جزم دیتے ہیں کون کون سے ہیں؟ ایک فعل کو جزم دینے والے کون کون سے ہیں؟ لم. دیکھیے لم ظاہر سی بات ہے جو ایک فعل کو جزم دے رہے ہیں، جزم دے رہے ہیں سب کے سب، تو پھر لم ہی کیوں لائے؟ یا لم کے علاوہ لم لے آئے تو کیا کچھ تبدیلی آ جائے گی؟ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. پہلے تو لم کیا فرق ہے ان میں؟
लम्मा लाम अम्र लाए जाए। देखिए इनका जो ये है, इनके दोनों अमल हैं। दोनों कौन से अमल? दोनों अमल कौन से? लफ्जी भी और कुलसुम फातिमा लफ्जी भी असर है, गुंचा फातिमा, और इनका मानवी असर भी है। मानवी असर भी है। लफ्जी असर बताइए क्या है? लफ्जी असर यानी लफ्ज में साकिन कर देता जब ये आता है तो। नून भी तो गिराता है, कहे जज्म दे देता है। लफ्जी असर, लफ्जी अमल क्या है? लफ्जी अमल जज्म। मानवी अमल माने में भी मानवी अमल, ठीक है। मानवी अमल क्या है? मानवी अमल मुजारे को माजी मनफी में बदल देता है। या ये कहीं मुजारे को माजी में बदल के माजी मुतलक मनफी, मुजारे को माजी मुतलक में बदल के मनफी कर देता है। मुजारे को माजी मुतलक में बदलकर मनफी करता है। मिसाल वही आपको याद होगी, लम यज़रिब, लम यज़रिब, लम नहीं था तो क्या था? यज़रिबो। यज़रिबो में दो जमाने थे ना, मारता है या मारेगा वो एक बार। लेकिन जब ये लम आ गया तो लफ्जी असर तो ये हुआ कि इसे जज्म दे दिया, तो अलामत जज्मिया सुकून दिखाई दे रही। मानवी अमल क्या है? मारता है या मारेगा वो एक मर्द से, नहीं मारा उसे एक मर्द ने, नहीं मारा उसे एक मर्द ने। माँ ज़राबा, माजी मीजान में याद है आपको? माजी मनफी, माजी मुतलक मनफी, यही तो था माँ ज़राबा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें और इसमें माना में कोई फर्क नहीं है। ज़राबा माजी था ना, उसको मनफी किया था। माँ ज़राबा, नहीं मारा उसे एक मर्द ने। लम यज़रिब, नहीं मारा उसे एक मर्द ने, नहीं मारा उसे एक मर्द ने। माना में यहाँ कोई फर्क नहीं है, सेम टू सेम हो गए। माजी मुतलक में बदल के मनफी कर देता है, तो ये भी माजी मुतलक मनफी, इसके माना भी माजी मुतलक मनफी। समझी अस्मा? अस्मा तो लम का लफ्जी अमल क्या है? जज्म। मानवी अमल क्या है? मुजारे को माजी मुतलक में बदलकर मनफी करता है। जनाब माँ ज़राबा के भी वही माने होगा, माँ ज़रा के भी माना हुई है, लम यज़रिब के भी नहीं मारा और उसे ला एक मर्द ज़राबा ने। के माने वही होगा। जी जी, नहीं मारा उसे एक मर्द ने, लम यज़रिब के माना भी। मिटा दूं जी। ये लफ्जी अमल लम का। अब आइए लम्मा, ये लम का बता दिया, अब लम्मा पे आइए। लफ्जी अमल वही जज्म, लफ्जी अमल वही जज्म। मानवी अमल क्या है? माजी मतलब करीब में तब्दील, माजी मतलब मनफी करीब में। मुजारे को माजी करीब, माजी करीब में बदलकर मनफी करता है। जैसे माजी करीब मनफी क्या था? माजी करीब मनफी क्या था? यही तो था ना, माँ कद ज़राबा। कद ज़राबा मारा है उसे एक मर्द ने। कद ज़राबा के माना क्या थे? मारा है उसे एक मर्द ने, लेकिन माँ बढ़ा दिया ना, नहीं मारा है उसे एक मर्द ने। ऐसे ही ये लम्मा है, लम्मा यज़रिब, लम्मा यज़रिब, नहीं मारा है उसे एक मर्द ने। माँ कद ज़राबा, नहीं मारा है उसे एक मर्द, नहीं मारा है उसे एक मर्द ने। लम्मा यज़रिब, नहीं मारा है उसे एक मर्द ने। देखिए वही है, नहीं है? मुजारे के माना को माजी करीब में, माँ कद ज़राबा, नहीं मारा है उसे एक मर्द ने अभी तक, यानी लम्बा यज़रिब यानी नहीं, वही बात है, नहीं मारा है उसे एक मर्द ने। ठीक है, मिटा दूं? ने थोड़ा सा रुक गया वो।
लामल लम्मा का लफ्जी अमल बता, मानवी लफ्जी अमल बता दिया है। ठीक है, लफ्ज का लफ्जी अमल भी है, लेकिन लफ्जी अमल तो चारों का एक ही है। जज्म, लफ्जी अमल तो चारों का एक ही है। लम वो क्या है, वो जज्म। मानवी अमल में फर्क है। मानवी अमल लम का क्या है, माजी मुतलक मनफी में बदलता है, लम्मा माजी करीब मनफी में बदलता है। और अभी बता रहे हैं, मिटाऊं जी। जी। अब आइए लामे अमल पे। लामे अच्छे करके लिखती हैं आप लोग, ये नहीं बताइए, ये तो मैं तो मिटा मिटा के जगह नहीं है इसलिए ऐसा कर रहा हूं। आपको सब क्या कैसे ही बनाना है। लफ्जी अमल, लफ्जी अमल क्या है, वही जज्म। मानवी अमल क्या है, मुजारे के माना खबरी थे ना, मुजारे के माना को तलबे इजाद फेल, तलबे इजाद फेल में तब्दील करता है, कर देता है। क्या मतलब वो तलबे इजाद फेल, समझी तलबे इजाद फेल या नहीं, अस्माई बताइए जी। तलबे इजाद फेल यानी फेल को इजाद करने की तलब, फेल को इजाद करने की चाहत। मैं आपसे कहूं पढ़िए, पढ़िए तो मैं पढ़ना आपसे तलब कर रहा हूं, मैं पढ़ना तलब कर रहा हूं। मैं आपसे कहूं खाइए तो मैं इसलिए आपसे खाना तलब कर रहा हूं कि खाइए, मैं चाह रहा हूं कि आप खाएं, मैं चाह रहा हूं कि आप खाएं। तलब यानी चाहत, फेल को अंजाम देने की चाहत कि आप अंजाम दीजिए सामने वाले से, कहते हैं नहीं कहते। मुजारे के माना चाहते हैं, मारता है या मारेगा वो एक मर्द, लेकिन अब मार चाहिए कि मारे वो एक मर्द, तू मार, चाहत में हो गए। जैसे ले यज़रिब, ले, देखिए लफ्ज़ी अमल दिखाई दे रहा है, वही जज्म। मानवी अमल ले यज़रिब, चाहिए कि मारे वो एक मर्द, चाहिए कि मारे वो एक मर्द। अब मैं तलब कर रहा हूं ना, चाह रहा हूं कि वो मारे, फेल को अंजाम दे, इजाद करे फेल को। समझ में आई अस्मा या नहीं कुलसुम फातिमा, पहले तो ये बताइए बिला झिझक। समझ में नहीं आया तो बिला झिझक बताइए। नहीं आया जी। देखिए एक ये होता है मारता है, एक मार। जब आपको कोई हुक्म देता है, देखिए बड़ा होगा तो वो हुक्म देगा, छोटा होगा तो गुजारिश करेगा, माना वही है। मैं कहूंगा इजरिब, अगर मैं बड़ा हूं तो समझो मैं आपको हुक्म दे रहा हूं इजरिब मारो, तो मैं क्या चाह रहा हूं आपसे, मारना, मैं मारना चाह रहा हूं कि आप मारें। मैं आपसे कहूं खाइए तो मैं आपसे क्या तलब कर रहा हूं कि आप खाइए। मैं आपसे कहूं जाइए तो मैं आपसे क्या तलब कर रहा हूं, ये खाना पीना रहना सहना ये तो फेल ही तो है, काम ही तो है। तो काम को अंजाम देने की चाहत पे दलालत करता है लामे अम्र। ले यज़रिब, चाहिए कि वो एक मारे वो एक मर्द, चाहिए कि आप, चाहिए कि खाए वो लड़की, आप खाओ, आप खाओ, चाहिए कि खाएं वो सब औरतें, उन्हें उन औरतों को सबको खाना चाहिए। तो मैं क्या तलब कर रहा हूं कि वो खाएं, इसमें बदल देता है लामे अम्र मुजारे के माना को। अभी तक यज़रिबो क्या माना था, यज़रिबो के मारता है या मारेगा, लेकिन अब क्या है ले यज़रिब, लाम आने से ले यज़रिब अब फेल को अंजाम देने की चाहत बताने लगी, उसमें चाहिए कि मारे वो एक मर्द। आप समझी, मिटा दूं, ठीक है। लाए नहीं का भी लफ्जी अमल वही है। लफ्जी अमल क्या है, वही जज्म। जज्म यानी पांच चीजों में सुकून, फेल साली में तो फेल नाक़िस है तो हर्फ इल्लत, और सात चीजों से नून एरा भी हस्फ। मानवी अमल क्या है, तलब इजाद फेल मनफी। मानवी अमल वहां पे क्या था, तलब इजाद फेल, यहाँ पर तलब तर्क फेल। स्पीकर शोर हो रहा है। मुजारे माइक मुजारे के माना को तलबे तर्के फेल में बदल देता है।
कहाँ लिखूं, बदल दे, फेल में बदल देता है। अस्मा तलब तर्क फेल यानी क्या, फेल को छोड़ने की चाहत। मत खाओ, मत खाओ, मैं आपसे क्या तलब कर रहा हूं कि ना खाओ, इस खाने को तर्क कर दो, ना जाओ, यानी मैं आपसे क्या तलब कर रहा हूं कि जाना आप तर्क कर दो, छोड़ दो। यजरिबो मारता है या वो मारेगा वो एक मर्द, ला यजरिब चाहिए कि ना मारे वो एक मर्द। अब मैं उससे चाह रहा हूं कि वो ना मारे, मारने को तर्क कर दे, यही माना हुए नहीं। कुलसुम फातिमा, गुंचा फातिमे, जी समझ में आए? तो तलब अंजाम फेल, तलब तर्क फेल, तलब यानी फेल को अंजाम देने की ख्वाहिश, फेल को तर्क करने की ख्वाहिश। मिटा दूं, जैसे मिसाल याद कीजिए, यजरिब को मारता है या वो मारेगा वो एक मर्द, ला यजरिब, ला यजरिब चाहिए कि ना मारे वो एक मर्द। वहां पे फेले अमर में क्या था, फेले अमर में क्या था, चाहिए कि मारे वो एक मर्द, या क्या चाहिए कि ना मारे वो एक मर्द। तलब है, चाहत है, फेल को तर्क करने की चाहत। मिटा दूं, जी अस्मा, अस्मा समझ गई तलब तर्क फेल, अब तलब अंजाम फेल। जी सकीना, सकीना समझ में आया? ये तो बोलते जो एक फेल को जज्म देते हैं, जो एक फेल को जज्म देते हैं, जो दो फेल को जज्म देते हैं, दो फेल को जज्म देते हैं। जज्म देने वाले, दो फेल को जज्म देने वाले को क्या कहा जाता है, अदाते शर्त, अदाते शर्त। अदाते शर्त जो है ना, वो अभी आप देखेंगे 10-12 इन्होंने गिनाए हैं, उनमें जैसे इन है, इन है, मता है, महमा है, ठीक है, और मसलन और है, गिना रखे हैं उन्होंने, माँ है, मन है, माँ है, मन है, इन सबको क्या कहा जाता है, अदाते शर्त। अदाते शर्त कहा जाता है। हाँ वो अभी गिनवा देंगे, अदाते शर्त। अदाते शर्त क्या करते हैं, अदाते शर्त क्या करते हैं, दो फेल को जज्म देते हैं। अदाते शर्त जैसे इन तजरीब अजरीब, इन तजरीब अजरीब, इसे क्या कहेंगे, अदाते शर्त। अदाते शर्त में से है ये, इसे कहा जाएगा फेले शर्त। जो दो फेलों को जन्म देने वाले अवामिल हैं, उनमें पहले फेल को क्या कहा जाता है, फेले शर्त, और दूसरे फेल को क्या कहा जाता है, फेले जवाब शर्त। फेले जवाब शर्त, एक नाम और है इसका जजा, फेले जजा, फेले जजा, फेले जजा भी कहते हैं इसको। पहले बताइए इसे जवाब शर्त क्यों कहते हैं, क्योंकि शर्त का जवाब है ना। क्या जवाब है, इन तजरीब, अगर आप मारोगी तो मैं भी जवाब तो मिलेगा शर्त का। शर्त यह है कि आप मारो तो ही मारूंगा मैं, अगर आप मारोगी अजरीब मैं मारूंगा। फेले जजा क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने गुनाह किया है। इन तजरीब अगर आप मारोगे तो गोया गुनाह किया आपने, उसकी जजा तो मिलेगी आपको। अजरीब मैं मारूंगा, मैं भी मारूंगा, ठीक है। इन तजरीब अजरीब, अगर लेकिन यहां पर जी सीगा कौन सा है, तजरीब लड़की के लिए भी लड़के के लिए भी, क्योंकि चौथा सीगा भी तजरीब है और सातवां सीगा भी तजरीब है। तो आप इन तजरीब अगर तू मारेगी अजरीब मैं मारूंगा, क्योंकि ये तजरीब होता है, ये अजरीब हो, ये 13वां सीगा है। इन तजरीब अगर तू मारेगा अजरीब मैं भी मारूंगा। यानी शर्त क्या है मेरे मारने की,
कुलसुम फातिमा गुच्चा फातिमा मेरे मारने की शर्त क्या है? अगर आप मारो, आप मारोगी तो मारूंगा मैं। शर्त यह है कि मैं जब मारूंगा, जब शर्त यह है कि आप मारो, आप मारोगी तो मैं मारूंगा। तो अदात शर्त जो है वो अवामिल जो दो फेल को जन्म देते हैं, उनमें पहले फेल को फेल शर्त कहा जाता है, दूसरे को जवाब शर्त कहा जाता है या जज़ा भी कहते हैं। ठीक है, मिटा दूं? जी। आइए किताब पे आइए, दर्स पे, ताकि हम थोड़ी तत्बीक कर लें, फिर बात को आगे बढ़ाएं। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेले मुजारे मजजूम, मुजारे मजजूम, दर्से पंजूम, मुजारे मजजूम। अलाए पहले जब बताया मुजारे मजजूम, जब मजजूम होगा तो कैसे होगा? कोई आमिल आएगा जब ही तो, वही बता रहे हैं अलाइम जज्म मुजारे। पहले तो अलामत बता रहे हैं, अलामत जज्म क्या होगी। अलाइम, अलाइम यानी अलामत की जमा, अलाइम, अलाइम जज्म मुजारे, मुजारे के जज्म की अलामतें। फेले मुजारे दाराए से अलामत जज्म, फेले मुजारे 3 अलामत जज्म रखता है। कौन कौन सी? सुकून, हर्फ इल्लत का हस्फ होना, सुकून या हस्फ हर्फ इल्लत और हस्फ नून एराबी। सुकून का 1 4 7 13 14 वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर आदिम, वाहिद मुतकल्लिम जमा। कब इसमें सुकून होगा? कब? अफाले सालिम में, सालिम में यानी नाकिस ना हो, यानी हर्फ इल्लत ना हो। जैसे लम यंसुर, देखिए सुकून है, लम तंसुर, लम तंसुर, लम अंसुर, लम नंसुर। 5 सीगों की मिसाल दे दी, 1 4 7 13 14। अलामत जज्म सुकून 5 सीगों में। लेकिन अगर फेल सालिम है तो, लेकिन अगर फेल नाकिस है तो हस्फे हर्फ इल्लत इन्हीं सीगों में 1 4 7 13 14। अफ़आल नाकिस, फेल नाकिस में चाहे नाकिस वावी हो, चाहे नाकिस वावी हो, जैसे यदऊस से हो जाएगा लम यदऊ, चाहे नाकिस याई हो जैसे यरमी से यरमे, चाहे नाकिस अलिफी हो जैसे यख्शा। सब में हस्फ हर्फ इल्लत, जैसे लम यदऊ वाव गिर गया, लम तदऊ वाव गिर गया, लम तर में या गिर गई, लम अर में या गिर गई, लम नक्शा में अलिफ गिर गया। फेल नाकिस में इन्हीं 5 सीगों में। और चाहे फेल नाकिस हो चाहे सालिम, 7 सीगों जो जहां जहां नून एराबी था वहां पे नून हस्फ हो जाएगा। कहां? दर अफ़आले खमसा, 5 अफ़आल में। कौन कौन से? वही 7 सीगे जहां नून एराबी आता है। 5 क्यों कहा जाता है? मैं कितने दिन से बार बार कह रहा हूं, क्योंकि चारों तस्निया में से 3 तस्निया एक से हैं, तो 1 ले लिया 2 हटा दिया, इसलिए 5 हुए हो। लम यंसुरा नून गिर गया, लम तंसुरा 3 थे, लम तंसुरा तंसुरा ने 3 थे ना, 1 ले लिया, तंसुरा नून गिर गया। लम यंसुरू नून गिर गया, जमा मुज़क्कर गायब। लन तंसुरू जमा मुज़क्कर हाजिर, नून गिर गया। लम तंसुरी 10वां सीगा, नून गिर गया, तंसुरीना से तंसुरी। अलामत जज्म पता लग गई, सुकून या हस्फ हर्फ इल्लत और नून एराबी हाजिर। अब ये बता रहे अवामिल जज्म, मुजारे को जज्म देने वाले आमिल कब हो? हरगा ये कि अज अवामिल जज्म, कब जब कभी अवामिल जज्म में से कोई एक बरसरे फेले मुजारे दाखिल शवत, फेले मुजारे के ऊपर दाखिल हो जाए तो फेले मुजारे मजजूम शवत, मजजूम हो जाता है। मजजूम हो जाता है तो अवामिल जो जज्म देने वाले अवामिल में से कोई एक अगर आ जाए तो मजजूम हो जाए। तो जज्म देने वाले अवामिल हैं कौन कौन से? कहा कि अवामिल जज्म बर 2 किस्म, जज्म देने वाले अवामिल की 2 किस्में, एक और एक 2। अवामिली के एक फेल जज्मी दहन, कुछ अवामिल वो हैं जो एक फेल को जज्म देते हैं, अवामिली के वो अवामिल के 2 फेल जज्मी दहन, 2 फेल जज्मी दहन। अवामिली के एक फेल जज्मी दहन वो अवामिल जो एक फेल को जज्म देते हैं, 4 हरफन, 4 है और चारों क्या है? हर्फ हैं, 4 हैं चारों। देखिए तवज्जो रखिएगा इस बात पे, 4 हर्फ हैं, एक फेल को जज्म देने वाले आमिल 4 हैं, चारों हर्फ हैं। लम ये भी हर्फ है, लम्मा लाम अम्र लाए नहीं, ये चारों हर्फ हैं। लम मुजारे रा लफ्जी अमल तो बता दिया,
معنوی عمل کیا ہے؟ لم جو ہے مضارع کو از جہت معنی کے اعتبار سے بے ماضی سادے یعنی ماضی مطلق میں تبدیل کرتے ہوئے وہ آنرا منفی میں گناہ اسے منفی کرتا ہے. لم ینصر احدن کسی نے مدد نہیں کی کسی نے، تو ماضی مطلق منفی ہے نہیں ہے. لما مضارع راز جہت معنی مضارع کو معنی کے اعتبار سے ماضی نقلی ماضی قریب میں تبدیل کر کے اس کی منفی کرتا ہے. جیسے تعلم القراءۃ اس لڑکی نے قراءت مثلا کی سیکھی. ولما یکتب لیکن ابھی تک لکھا نہیں ہے. خاندان نہ آموز اما ہنود نہ نوشتہ لیکن ابھی تک لکھا نہیں ہے، لیکن ماضی قریب منفی. لام امر مضارع کو پر داخل ہوتا ہے اور اس کو دارائے معنی طلب میں گناہ طلب کے معنی میں بدل دیتا ہے. طلب کسی کام کی طلب، جیسے لیتق اللہ المؤمن، مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے. تو طلب کر رہے ہیں نا آپ، چاہ رہے ہیں نہیں مومن سے کہ وہ ڈرے. لائنا ہی مضارع داخل میں شواد مضارع پہ داخل ہوتا ہے. وہ آنرا دارائے معنی طلب ترک فعل کو ترک کرنے کی طلب میں بدل دیتا ہے. لا تلمزوا انفسکم ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو، عیب نہ تلاشو. تو نہ تلاش کو ترک کرنا چاہ رہے ہیں ہم، طلب کر رہے ہیں ہم کہ تلاشو مت ایک دوسرے کے عیب. ترکیب کیسے ہوگی اب دیکھیے آپ کے سامنے. اگر ایک جملہ ہے لم ینصر تو آپ کہیں گے لم حروف جازم میں سے ہے، عامل جزم یعنی جزم دینے والے عامل میں سے ہے، عوامل میں سے ہے. اور ینصر فعل مضارع مجزوم ہے لم کی وجہ سے، اور علامت جزم کیا ہے اس کا؟ سکون. کیوں؟ کیونکہ یہ پہلا صیغہ ہے. لیتقے لام کیا ہے؟ لام امر ہے، عوامل جزم میں سے ہے، حروف جازم میں سے ہے. یتقے فعل مضارع مجزوم ہے لیکن علامت جزم کسرہ مت دیکھیے گا، حذف حرف اللہ، کیونکہ اتقا یتقی تھا، یتقی قافیہ درقی تو حرف علت حذف ہے. لا تلمزو لا حروف جازم میں سے لا ناہیہ ہے. تلمزو فعل مضارع مجزوم ہے، لا کی وجہ سے علامت جزم کیا ہے؟ نون حذف ہو گیا. تلمزونا تھا، نوواں صیغہ تھا، اس لیے کہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے. اب یہ بات آ گئی ایک حرف، یہ چار حرف ہیں ایک فعل کو جزم دینے والی، لیکن جب دو فعل کو جزم دینے والوں کی بات آئی تو انہوں نے حرف نہیں کہا، ادات کہا. کیوں؟ کیونکہ سب کے سب حرف نہیں ہیں اور سارے کے سارے اسم بھی نہیں ہیں. ان میں ان جو ہے وہ حرف ہے، باقی اسم ہے. لہذا ان کو اسم اور حرف کو کیا ایک نام دے دیا؟ ادات شرط. ادوات شرط جازم، ادوات شرط جازم. عواملی کے دو فعل را جزمی دہن، وہ عوامل جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں وہ کتنے ہیں جی؟ 12 کلمے بود، 12 کلمے ہیں. وہ ہمیں وہی 12 کے 12 برائے شرط می باشان شرط کے لیے ہیں، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے ادات شرط. ٹھیک ہے، شرط کے لیے ہے. تو فعل اول پہلے فعل کو کیا کہتے ہیں؟ فعل شرط. دوسرے وہ فعل دوم را دوسرے فعل کو جواب شرط. می نامان نام رکھتے ہیں، پہلے فعل کو فعل شرط، دوسرے فعل کو جواب شرط نام رکھتے ہیں. کون کون سے ہیں وہ 12؟ ان معنی کیا ہوں گے؟ اگر ان تجتہد تنجا، اگر تو کوشش کرے تو کامیاب ہو جائے گا. تو دو فعل ہے تجتہد تنجا، دو فعل کو جزم دیا. یہ کیا ہے؟ حرف شرط، عامل شرط ہے، عامل جزم ہے، عوامل جزم میں سے، دو فعل کو جزم دینے والوں میں سے. اور تجتہد فعل شرط، تنجا جواب شرط. ازما کے کیا معنی ہے؟ ہرگاہ، جب کبھی. جیسے ازما تتعلم تتقدم، جب کبھی تو علم سیکھے گا کامیاب ہوگا، آگے بڑھے گا. تتقدم یا آگے بڑھے گا. تو یہ پہلا فعل شرط، دوسرا جواب شرط. ازما کے معنی کیا؟ ہرگاہ یعنی جب بھی. من کے معنی کیا ہے؟ جو کوئی. ہرکس یعنی جو بھی، جو کوئی. من یجتہد ینجا، جو بھی کوشش کرے گا اس کی جزا کیا ملے گی؟ کامیاب ہوگا. فعل شرط، جواب شرط. ما یعنی جو کچھ. غنچہ پاتے میں ما تاکل آکول، جو آپ کھائیں گی وہ میں کھاؤں گا. ہر چے بخوری می خورا،
जो आप खाएंगी मैं खाऊंगा। तो मा ताकुल, माँ के क्या माना हुए, यह है अदात शर्त जाजिम, ताकुल फेल शर्त, आकुल जवाब शर्त। माना क्या होगा, जो कुछ, हर यानी माँ यानी हर जो कुछ, महमा यानी जब भी, महमा तामुर बिल खैर, कुलसुम फातिमा महमा जब कभी, तामुर आप हुक्म करेंगी, बिल खैर नेकी का, जब भी आप नेकी का हुक्म करेंगी, अफअल हो मैं उसको अंजाम दूंगा, मैं उसको अंजाम दूंगा। तो बिल तामुर क्या है, फेल शर्त, अफअल हो क्या है, जवाब शर्त। अय्यो, अय्यो के माना है जो कोई, अय्युन यज्तहिद यंजा, जो कोई भी कोशिश करेगा कामयाब हो जाएगा। यज्तहिद फेल शर्त, यंजा जवाब शर्त। कैफमा, कैफमा जिस तरीके से भी, फहीम साहब, कैफमा तजलीस, जैसे आप बैठेंगे, अजलीस ऐसे ही मैं बैठूंगा। मेरे बैठने की शर्त यह है, आप जैसा कि आप पहले बैठे, आप जैसे बैठेंगे ऐसा बैठूंगा। तो फेल शर्त है तजलीस, अजलीस है जवाब शर्त। जिस तरीके से आप बैठेंगे मैं बैठूंगा। कैफमा, एक है ऐनमा, ऐनमा सकीना, ऐनमा तजलीस, अजलीस जहां आप बैठेंगी मैं बैठूंगा। मेहदी हुसैन, ऐनमा तजलीस जहां आप बैठेंगे, जिस जगह आप बैठेंगे, अजलीस में बैठूंगा। तो तजलीस जो पहला फेल है वो फेल शर्त, दूसरा क्या है, जवाब शर्त। है सुमा, है सुमा जी शारिफ साहब, है सुमा तुसाफिर, हर जहां भी आप सफर करेंगे, जहां भी आप सफर करेंगे मैं भी सफर करूंगा। आप आगरा का सफर करेंगे तो मैं भी मसलन। तो तुसाफिर पहला फेल फेल शर्त, दूसरा जवाब शर्त। आवाज आ रही है, और आप लोग समझ रहे हैं नहीं, कुलसुम फातिमा, गुंचा, फहीम साहब जी। अन्ना, अन्ना के माना भी हर जगह के हैं। अन्ना यज़हबिल आलिमो, जहां भी आलिम जाए, अन्नम अन्ना यज़हबिल आलिमो, जहां भी आलिम जाए, युकराम उसका एहतराम किया जाता है। आलिम में हर जा आ रहा है। हाँ, कई चीजें हैं जो हर्जा के माने में, जहां कहीं भी ऐनमा है, सुमा, अन्ना, ठीक है। अन्ना, तो देखिए अन्ना ने दो फेल को जज्म दिया है। गुंचा फातिमा, कहाँ है पहला फेल जी? पहला ये यज़हब पे तो कसरा है, देखिए। हाँ, तो उससे यज़हबी, अन्ना यज़हबिल आलिमो युकरम, युकरम तो दिखाई दे रहा है फेल पे जज्म, लेकिन यज़हब में कहां पे दिखाई दे रहा है जज्म? नहीं है, नहीं। कौन बताएगा? बताओ उसके देखें, कुलतुम फातिमा, ये यज़हबी है, ये यज़हबी है, लेकिन ये अल आलिमो, आप ये हमजा हमजा वस्ल है। ये आपको पता है कि जब बीच में आता है तो पढ़ा नहीं जाता, अपने से पहले वाले को बाद वाले से मिला देता है। तो हमजे से पहले बे है वो भी साकिन, हमजे के बाद लाम है वो भी साकिन, दो साकिन कैसे मिल सकते हैं? इसलिए आसानी के लिए कसरा दे दिया है ऐसे, वरना इसमें यज़हब ही है। लेकिन जब दो साकिन एक जगह होते हैं तो हरकत दी जाती है आसानी के लिए, तो कसरा देते हैं क्योंकि कसरा आसान होता है। अन्ना यज़हबिल आलिमो युकरम, ये फेल शर्त है, ये जवाब शर्त। मता यानी हर वक्त, यानी जब, जिस वक्त भी। मता तदरुसू तफूजू, आप सब जब भी पढ़ोगे कामयाब होगे। तदरुसू फेल शर्त, तफूजू, उसमें तदरुसूना था, तफूजूना था, मता के आने की वजह से दोनों मजजूम हो गए, अलामत जज्म नून एराबी हस्फ हो गया। अय्याना, जहां भी, अय्याना तसअलनी, जहां भी नहीं जब कभी। अय्याना तसअलनी, तसअल है ये फेल, मजजूम है, देखिए लाम साकिन हो गया। अय्याना तसअलनी, या मुझसे, या मफूल है, जब भी आप मुझसे सवाल करेंगी, उजिब का, मैं आपको जवाब दूंगा। उजिब के होता तो लड़की के लिए, लेकिन इससे पता लगा उजिब का लड़के के लिए। अय्याना तसअलनी, फहीम साहब जब भी आप मुझसे सवाल करेंगे, उजिब का, तो मैं आपको जवाब दूंगा। तो ये देखिए 12 है, ये 12, इन 12 में से इन हर्फ है, बाकी इसमें ये सब, इसे कहेंगे हर्फ शर्त, बाकी को कहेंगे इसमें शर्त, इसमें शर्त, और सबको मिला के कहेंगे अदात शर्त। क्या करते हैं? ये दो फेल को जज्म देते हैं, पहले फेल को फेल शर्त कहा जाएगा, दूसरे को जवाब शर्त। आइए देखिए,
कलेमाती के एक फेल रा जज्मी दहन, वो कलेमात जो एक फेल को जज्म देते हैं, हमेगी हमेगी यानी सबके सब हर्फ मी बाशान हर्फ हैं। वो कलेमात जो एक फेल को जज्म देते हैं कौन कौन से? लम लम्मा लाम अम्र लाए नाही, ये सबके सब हर्फ हैं। वो कलेमाती के दो फेल रा जज्मी दहन, लेकिन वो फेल जो दो फेल को जज्म देते हैं, वो कलेमात जो दो फेल को जज्म देते हैं, हमेगी सबके सब इस्म मी बाशान, सबके सब इसमें बेजुज दो कलमे, दो कलमों को छोड़कर। हाँ मैं एक कह रहा था दो, इन और इस्मा के हरफन के ये हर्फ हैं, इन और इस्मा हर्फ हैं, बाकी इसमें। तरकीब देखिए, इन हर्फ जाजिम है, आमिल जज्म, फेल अदात शर्त, तजतहिद फेल शर्त, मजजूम फेल शर्त है, मजजूम अलामत जज्म सुकून, तंजा जवाब शर्त, मजजूम अलामत जज्म क्या है? तरकीब देखिए, आपके सामने अगर कोई जुमला आ जाए मैं यज्तहिद यंजा, और आपसे कोई कहे इसकी तरकीब कीजिए, तो आप कहेंगे मन अस इस्माए जाजिमीस के दो फेल रा जज्म बिदहत, मन उन अस्माए जाजिमा में से है, वो इस्म जो जज्म देते हैं उनमें से है कि जो दो फेल को जज्म देते हैं, वो इस्म जो दो फेल को जज्म देते हैं उन अस्मा में से है ये मन। यज्तहिद फेल शर्त है, मजजूम है, अलामत जज्म क्या है? सुकून। यंजा जवाब शर्त है, मजजूम है, अलामत जज्म क्या है? सुकून। मता तदरुसू तफूजू, मता उन वो अस्मा जो दो फेल को जज्म देते हैं उनमें से है, तदरुसू फेल शर्त है, मजजूम है, अलामत जज्म क्या है? हस्ब नून एराबी, तदरुसू ना था। तफूजू जवाब शर्त है, मजजूम है, अलामत जज्म क्या है? इसका भी हस्ब नून। नुक्ते फेले मुजारे गाही पस अस फेले आम्र या नाही बेसूरत मजजूमियत, कभी कभी फेले मुजारे जो है ना फेले आम्र के बाद इरहम तुरहम, इरहम तो फेले आम्र है ना, उसके बाद है चलो फेले आम्र तो मजजूम होता है, आपने कह दिया इरहम, उसके बाद तुरहम तुझ पे रहम किया जाएगा, तुरहम फेले मुजारे है, मजजूम हो गया। क्यों मजजूम है? आमिल जज्म तो इसके ऊपर कहीं है ही नहीं। तो ये कह रहे हैं कभी कभी फेले अम्र के बाद या फेले नहीं के बाद फेले मुजारे मजजूम आता है। तो मजजूम होता कैसे है? जब उस पर दिखाई नहीं दे रहा कुछ जज्म देने वाला, गुंचा फाते में जब उसके ऊपर जज्म देने वाला कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो मजजूम कैसे होता है? कहा कि वो मजजूम शुदनियान, उसका मजजूम होना बेखातिर वजूद हरफ शर्त तो फेले शर्त हस्त के बकरीन हस्ब कर दीदा। एक मौजूद होना किसका? हरफ शर्त और फेले शर्त। एक हरफ शर्त और फेले शर्त मौजूद होता है लेकिन वो करीना होने की वजह से हस्ब हो गया है, जैसे इरहाम तुरहम। देखिए मैं आपसे कहूं गुंचा फाते में फहीम साहब आपसे कहूं इरहम आप रहम करो, आप रहम करो, तुरहम आप पर रहम किया जाएगा। इरहम तुरहम, इरहम तुरहम। देखिए इरहम फेले अम्र है नहीं है, फेले अम्र तो मजजूम होता है, आप कह सकती हैं कि इसे जज्म किसने दिया? फेले अम्र है, मजजूम होता है। लेकिन ये तुरहमो था, ये फेले मुजारे, ये मजजूम कैसे हो गया? अब यही कहा है कि बास टाइम फेले अम्र के बाद या फेले नहीं के बाद मुजारे मजजूम आता है, और ये जो मजजूम हुआ है वो असल में यहाँ पर शर्त और फेले शर्त महजूफ है। इन तरहम तुरहम कैसे हस्ब क्यों हुआ? करीना क्या था? मैंने जब आपसे कहा इरहम तुरहम आप रहम कीजिए, रहम किया जाएगा, तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप रहम कीजिए, अगर आप रहम करेंगे तो आप पर रहम किया जाएगा, तो वही तो महजूफ है। इन तरहम इरहम आप रहम कीजिए, तुरहम तो आप पर रहम किया जाएगा, यानी क्या मतलब? अगर आप रहम करेगी तो आप पर रहम किया जाएगा। तो यहां पर जो फेले अम्र और फेले नहीं के बाद कभी कभी मुजारे मजजूम आता है, वो एक शर्त और एक फेले शर्त के महजूफ होने की वजह से होता है। असल में वो तुरहम जवाब शर्त है उस अदात शर्त के लिए जो फेले शर्त के साथ महजूफ है करीने की वजह से। करीना क्या है कि मैं आपसे जब कह रहा हूं आप रहम कीजिए, तो इसका मतलब यह है कि अगर रहम करेगी तो रहम किया जाएगा आप पे। समझ गए जी? सकीना, अस्मा जी यही कहना चाह रहे हैं यहां पर।
یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ فعل مضارع کبھی کبھی فعل امر یا فعل نہی کے بعد بے صورت مجزوم صورت میں آتا ہے. اور مجزوم جو ہوتا ہے وہ مجزوم شدن آن، اس کا مجزوم ہونا کس وجہ سے ہے؟ بخاطر وجود حرف شرط و فعل شرط. حرف شرط اور فعل شرط کے موجود ہونے کی وجہ سے ہے کہ جو قرینے کی وجہ سے حذف ہو گیا ہے. جیسے ارحام فعل امر کے بعد دیکھیے ترحام، کہ اصل میں ایسے تھا ارحام ان ترحم رحم کرو، اگر آپ رحم کرو گے تو آپ پر رحم کیا جائے گا. ارحم فعل امر ہو گیا، ان ترحم ادات شرط اور فعل شرط قرینے کی وجہ سے حذف. ترحم فعل مضارع مجزوم علامت جزم سکون، اور عامل جزم جو ہے وہ ان شرطیہ محذوف ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. اب یہاں پر اب ہم نے مضارع مرفوع پڑھا، مضارع منصوب پڑھا، مضارع مجزوم پڑھا، ان سب کو یہاں پر بتا دیا ہے. فعل مضارع سالم ہو، فعل سالم ہو تو ان 5 صیغوں میں علامت رفع، اگر مضارع مرفوع ہے تو علامت رفع ضمہ ہوگی ان 5 صیغوں میں، علامت نصب فتح ہوگی اور علامت جزم سکون ہوگی. اور جو انہی 5 صیغوں میں اگر فعل ناقص ہے تو مضارع مرفوع میں علامت رفع ضمہ مقدر ہوگا، علامت نصب فتح ظاہر ہوگا اور حرف علت حذف ہوگا اگر مضارع مجزوم ہے تو. اور فعل مضارع اگر یہ ناقص واویہ یہ آئی ہے تو، اور اگر فعل مضارع ناقص الفی ہے تو ان 5 صیغوں میں تو ضمہ مقدر رہے گا حالت رفعی میں، فتح مقدر رہے گا حالت نصبی میں، اور علامت جزم حذف حرف علت ہے ہی. باقی بچہ افعال خمسہ چاہے سالم ہو چاہے ناسالم، اس میں نون اعرابی مضارع مرفوع میں نون اعرابی رہے گا، مضارع منصوب اور مضارع مجزوم میں نون اعرابی حذف ہو جائے گا. یہ یہاں پہ بتایا. اس کے بعد تمرین ہے. سمجھیے آپ اس نقشے کو یا نہیں یہ بتائیے جی. غنچہ فاطمہ ان کو غور کر کے آئیے گا اس کو، ٹھیک ہے جی آقا. سب لوگ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. فی امان اللہ. خدا حافظ.